સરકારની પરમિશન વગર શિક્ષકને કોર્ટ બોલાવી નહીં શકે. અને જો કદાચ શિક્ષકને કોર્ટમાં જવાનું થાય તો કોર્ટના પ્રત્યેક સદસ્ય એમના સન્માનની અંદર ઊભા થઈ જાય. કારણ એ દેશોની જનતા માને છે કે શિક્ષક જ દેશના ઘડવૈયા છે. આવા સન્માનને પાત્ર આપ સર્વ શિક્ષક ભાઈ બહેનો તેમજ સ્ટેજના સર્વ મહાનુભાવો, આજના સેમિનારમાં આપણા સર્વનું એક જ ચિંતન છે, હેલ્ધી યુથ, હેલ્ધી ઇન્ડિયા. જો યુથને સશક્ત બનાવવું હોય તો એના હેલ્થ તેમજ તેના ઇમોશન્સને મજબૂત બનાવવું આવશ્યક છે. આજના કાર્યક્રમની અંદર આપણે હેલ્ધી યુથ તેમજ બાળકો માટે શું યોગદાન આપી શકીએ એના માટે સુંદર મજાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરતા પહેલા 3 મિનિટ એ પ્રભુ પિતાને યાદ કરી લઈએ. આજના કાર્યક્રમના માનવંતા મહેમાનોનું પુસ્તકથી સ્વાગત કરવામાં આવશે. પુષ્પો તો થોડા સમય પછી કરમાઈ જશે, પરંતુ પુસ્તકો એ કરમાયેલા જીવનને ફરીથી નવપલ્લવિત કરી દે છે. તો પુસ્તકથી સ્વાગત કરવા માટે આવી રહ્યા છે બ્રહ્માકુમારી હર્ષાબેન, જેઓ વર્તમાન સમયે પાસોદરા સેવા કેન્દ્રનું સફળ સંચાલન કરી રહ્યા છે. આપ છેલ્લા
15 વર્ષથી આપે આપનું જીવન આ ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત કરેલ છે. સર્વપ્રથમ સ્વાગત કરશે બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન. આપણે સૌ કરતલ ધ્વનિથી સર્વનું સ્વાગત કરતા રહીશું. ભ્રાતા બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન, ભ્રાતા દીપકભાઈ દરજી, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી, ભ્રાતા રાજેશભાઈ રેડિયોલોજીસ્ટ, ભ્રાતા પ્રફુલભાઈ શિરોયા, લોક દ્રષ્ટિ ચક્ષુબેન ચેરમેન શ્રી, ભ્રાતા લાલજીભાઈ, સંચાલક શ્રી જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલય. પુસ્તકોથી સ્વાગત થયા બાદ કાર્યક્રમની વિધિવત ઉદ્ઘાટન વિધિ કરવામાં આવશે. તેના પહેલા શબ્દોથી સ્વાગત આદરણીય બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન કરશે. આપ સર્વને ખ્યાલ હશે, સવારના પહોરમાં જ્યારે ઉષાનું પહેલું કિરણ નીકળે છે ત્યારે ધરતી કેટલી તેજસ્વી બની જાય છે, પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠે છે. એ જ રીતે વરાછા વિસ્તારમાં જો ઉષાનું પહેલું કિરણ હોય તો એ છે આદરણીય બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન, કે જેમના આગમનથી સમગ્ર વરાછા વિસ્તારની અંદર પરમાત્માની અલૌકિક જ્યોત્સના ઝળહળી ઉઠી છે. તો શબ્દથી સર્વનું સ્વાગત કરશે આદરણીય બ્રહ્માકુમારી રાજયોગીની તૃપ્તિબેન, જેઓ છેલ્લા 38 વર્ષથી આપે આપનું જીવન આ ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત કરેલ છે. છેલ્લા 17 જેટલા સેવા કેન્દ્રનું આપ સફળ સંચાલન કરી રહ્યા છો. આપ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયના ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના નેશનલ કોઓર્ડિનેટર છો. આદરણીય બ્રહ્માકુમારી તૃપ્તિબેન. ઓમ શાંતિ. આપ સૌ પ્રેમથી બોલો ઓમ શાંતિ. ફરીથી બોલો ઓમ શાંતિ. હવે એક વખત હસતા હસતા બોલો ઓમ શાંતિ. વાહ, સરસ. પ્રતિવર્ષ એપ્રિલ મહિનો આવે ને એટલે લોકો એમ કહેશે કે ભાઈ એકાઉન્ટના હિસાબે નવું વર્ષ શરૂ થયું. પણ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના અમારા તમામ ભાઈઓ અને બહેનોને પ્રતિવર્ષ આ એકાઉન્ટના વર્ષની સાથે સાથે આપ સૌની સ્મૃતિ આવે. એપ્રિલ મહિનો શરૂ થયો, હવે પરીક્ષાઓ પૂરી થશે. 15મી એપ્રિલ પછી આપણે સર્વ ગુરુજનોને, હું શિક્ષક નથી કહેતી, ગુરુજન કહીશ, જેમના દ્વારા અનેકોને ગુરુત્વ અર્થાત કંઈક જીવનનું આકર્ષણ, કંઈક જીવનની મહાનતા શીખવા મળે છે, એવા આપ સર્વ ગુરુજનોની યાદ દર એપ્રિલ મહિને આવ્યા વગર રહેતી નથી. અને યાદનું, પ્રેમનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ તમારા બધાની આટલી સરસ મજાની ઉપસ્થિતિ છે. તમે પોતાના માટે તાલી પાડો. જ્યારે પણ આમંત્રણ આપીએ અને આવા પવિત્ર આમંત્રણને સ્વીકારી અને સદાયને માટે ઉમંગ ઉત્સાહથી આવી મૂલ્યલક્ષી તાલીમ શિબિરમાં જે આપ ભાગ લઈ રહ્યા છો, એ જ બતાવે છે કે એક જાગૃત શિક્ષક છો. વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે, સ્વયં પ્રત્યે, પોતાના કર્તવ્ય પ્રત્યે. તો આપ સર્વ ગુરુજનો અહીં પધાર્યા છો, અમારા માટે અતિ હર્ષની વાત છે. આજની આ સભામાં આપણા સૌના સાચા સદગુરુ, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શિવનું હું હૃદયપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. પરમાત્માને માટે એકવાર જોરદાર તાલી પાડો. ઈશ્વર આપણા સૌની વચ્ચે છે, એ આપણો પહેલો ગુરુ છે, તેના થકી આપણા સર્વનું આ જીવન છે. તો એવા પ્રભુનું આજની આ સભામાં હાર્દિક સ્વાગત છે. ત્યારબાદ
આપણને સૌને કંઈક મૂલ્યોનું ભાથું, કંઈક આધ્યાત્મિકતાનું જ્ઞાન અને જીવન જીવવાની કલા વિશે જે પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને પથ બતાવવા માટે આવ્યા છે. ફક્ત અહીંયા નહીં, આખા ભારત દેશની અંદર જેમની માંગ છે તેવા આદરણીય રાજયોગીની ગીતા દીદીજીને આપણે સૌ તાલીઓથી વધાવીએ. ગઈકાલે બપોરે લખનઉ હતા, પરમ દિવસે દિલ્હી હતા, આજે એ આપણા બધાની વચ્ચે છે અને 2 દિવસ પછી અહીંયાથી ઉડી જઈને પતા નહીં કઈ જગ્યાએ ભારતમાં એમની જ્ઞાન ગંગા વહાવશે, એ તો ઈશ્વર જાણે. તો નિરંતર આવી યાત્રા સર્વને કરતા અને કરાવતા રહેતા ગીતાબેન, એમનો વધુ પરિચય તો તમને એમના વક્તવ્યમાં પ્રાપ્ત થશે. તો આવી દિવ્ય હસ્તીને હું ફરીથી આ સભામાં આવકારું છું. આપણા બધાની વચ્ચે નિરહંકારિતા અને નમ્રતાનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ એટલે આદરણીય ભ્રાતા દીપકભાઈ દરજી, જેમને પોતાની સત્તાનો, પદનો જરા પણ અહમ સ્પર્શ નથી કર્યો. સામેથી આટલી મોટી હસ્તી હોય અને સામેથી ફોન કરે એવું મારી તો કલ્પના બહારની વસ્તુ છે. પણ છતાં પણ પોતે આવી રહ્યા છે એના કન્ફર્મેશન, મિસ કોલ જોઈ એના કન્ફર્મેશન, આ પદ ઉપર રહી અને આપવા અને આટલા વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ શહેરના દરેક નાગરિકને માન આપવું, એને હું કહું છું નિરહંકારિતા. તો આજની આ સભામાં આપણા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આદરણીય દીપકભાઈને પણ હું ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી અને પ્રેમથી આવકારું છું. દીપકભાઈની સાથે બેઠેલા છે ડૉક્ટર રાજેશભાઈ. બ્રહ્માકુમારી સંસ્થામાં તેઓ 1 વર્ષના હતા ને, કેટલા નાના, માત્ર 1 વર્ષની ઉંમર, ત્યારથી તેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં તેમના માતા પિતા સાથે આવતા. 44 વર્ષથી જેમણે મેડિટેશન, સાધના અને તપસ્યાને પોતાના જીવનનો એક આધ્યાત્મિક માર્ગ બનાવ્યો છે તેવા આદરણીય રાજેશભાઈનું પણ ખૂબ જ ભાવથી સ્વાગત છે, અભિવાદન, અભિનંદન. આદરણીય ડૉક્ટર પ્રફુલભાઈ શિરોયા, વરાછા વિસ્તારના, સુરતના પણ, વરાછાના કોઈ પણ ગલીમાં, સોસાયટીમાં કે ઘરમાં જાઓ, આ પ્રતિભાથી કોઈ અજાણ નથી, કોઈ અજાણ નથી. એટલી સમાજ સેવા, લોકોની સેવા નિસ્વાર્થ ભાવે કરનાર ડૉક્ટર પ્રફુલભાઈ શિરોયા, લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુ બેંકના ચેરમેન શ્રી તથા સુરત જિલ્લા હોમગાર્ડ્સના કમાન્ડર શ્રી, આપનું પણ હું આ સભામાં સ્વાગત કરું છું. સ્વાગત હો, સ્વાગત હો. લાલજીભાઈ, જ્ઞાન જ્યોત વિદ્યાલય ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન ધરાવે છે. સૂર્ય નમસ્કાર કરનાર વિશાળ વૃંદની સાથે જેમણે ભારતની પ્રતિભાને વિશ્વની સામે રાખી છે તેવા આદરણીય લાલજીભાઈને પણ આપણે તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. આજની આ સભામાં ઉપસ્થિત હું જોઉં છું અનેક સ્કૂલોના આચાર્યશ્રી પધાર્યા છે, ટ્રસ્ટીઝ પધાર્યા છે અને ગુરુજન તો છે જ. આપ સૌનું પણ દિલથી સ્વાગત હો, અભિનંદન, અભિવાદન. ઓમ શાંતિ. આપનું પણ બેન આ સભામાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હવે આજના કાર્યક્રમની વિધિવત ઉદ્ઘાટન વિધિ કરીશું દીપ પ્રજ્વલન દ્વારા. સ્ટેજના સર્વ મહાનુભાવોને નમ્ર નિવેદન, આપ સર્વ આ દીપ પ્રજ્વલનના કાર્યક્રમની અંદર સંમિલિત થશો. આવો. આપ સર્વે થોડા વખત પહેલાં જ પેપરમાં વાંચ્યું હશે કે ભારત દેશ આખા વિશ્વમાં વસ્તીમાં
નંબર 1 બની ગયો છે. આપણા દેશનો યુવા વર્ગ એ વિશ્વમાં બીજા નંબર ઉપર છે. તો ચાલો આપણે સૌ એ સંકલ્પના સાથે દીપ પ્રજ્વલિત કરીએ કે આપણો યુવા વર્ગ બધી જ રીતે શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સ્પોર્ટ્સમાં નંબર 1 બને. એવી સંકલ્પના સાથે આપણે સૌ દીપ પ્રજ્વલિત કરીશું. આપણે સૌ કરતલ ધ્વનિથી આ દીપ પ્રજ્વલનની વિધિને વધાવી લઈશું. अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं. अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से. सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं. એક મિનિટ આપણે સૌ પ્રભુ પિતાને યાદ કરીશું. परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला. राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला. दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से. सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं. આપણા સર્વ માટે અતિ ગર્વ અને ગૌરવની વાત છે કે G20ની પ્રેસિડેન્સી એ આપણા ભારત દેશને મળેલ છે. G20ના બેનર હેઠળ સમગ્ર ભારત દેશની અંદર 250થી વધારે જેટલા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને એ G20માં Y20નો કાર્યક્રમ પણ સામેલ છે. યુવા મંત્રાલય તેમજ બ્રહ્માકુમારીસ વિદ્યાલયના યુવા પ્રભાગ દ્વારા આ Y20 કાર્યક્રમનું આયોજન સમગ્ર ભારત દેશની અંદર મુખ્ય શહેરોના બ્રહ્માકુમારીસ વિદ્યાલય દ્વારા કરવામાં આવે છે. આજે આપણે ત્યાં આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ Y20ના ઉદ્દેશ્ય તેમજ લક્ષ્ય શું છે, એની પ્રવૃત્તિ શું છે, તેનાથી આપણને સર્વને લાભાન્વિત કરશે. આજના કાર્યક્રમના પ્રશિક્ષણ કરતા યુવા પ્રભાગના નેશનલ કોર કમિટીના સદસ્ય, ભીનમાલ સેવા કેન્દ્રના સંચાલિકાબેન આદરણીય બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ કરશે. બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન. ओम शांति. सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति. मंच पर उपस्थित सूरत के शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय तृप्ति दीदी, आदरणीय डॉक्टर राजेश भाई, अन्य सभी महानुभाव और आप सभी
इस प्रशिक्षण शिविर में पधारे हुए स्वयं भी युवा हैं और होनहार देश के युवाओं को तैयार करने की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति भारत और उस भारत में इस वर्ष दिसंबर 2022 से, जैसा अभी रीमा बहन ने बताया, G20 समूह के अध्यक्षता का गौरव भारत देश को मिला है। वैसे तो G20 यानी 20 देश, लेकिन उसमें यूनाइटेड किंगडम वो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्षता कर रहा है, तो 27 कंट्री यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के और 19 कंट्री और माना 46 कंट्रीज का ये एक समूह है। और प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों पर इनकी अध्यक्षता किसी एक कंट्री को दी जाती है। और इस वर्ष, वैसे तो पिछले वर्ष की डिमांड थी भारत सरकार की, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे 2022 में, लेकिन उस वक्त नहीं तो 2023 को। और ये समूह जिसमें जब तक सभी कंट्रीज सहमत नहीं होते तब तक कोई भी एक फैसला पार नहीं होता, तो यह समझा जाए कि विश्व के ये वो 46 कंट्रीज है जिनकी लिस्ट से आप समझ सकते हैं कि दुनिया के मोस्ट पावरफुल देश है ये सभी। लगभग विश्व की 85% जीडीपी और लगभग 75% का ट्रेड व्यापार जिन कंट्रीज के आधार पे तय होता है, वो सारे देश मिलकर आज भारत के प्रतिनिधित्व में वर्ष भर चल रहे हैं। ये अपने आप में हम सभी का भारतीय होने के नाते बहुत बड़ा गर्व का विषय है। भारत के लिए जो प्राचीन समय से ये कहा गया, या हम सभी तो रोज ही कहते हैं, वंदे मातरम, या भारत भूमि को हम माँ कहते हैं, तो ये केवल भारतवासियों की ही नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें सारे विश्व को भी एक परिवार मानने का दृष्टिकोण दिया है। और G20 का भी इस वर्ष का मोटो वन अर्थ वन फैमिली रहा है, जिसको संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम यह नाम दिया है। तो वसुधा पूरे विश्व के लिए हमारी हर सोच रही है। दुनिया में लोग, अन्य देश हम देखते हैं कि तरक्की करने में लक्ष्य रखते हैं सुपर पावर बनने का। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, कोई देश अपने को सुपर पावर बनाना चाहता है, तो उनका लक्ष्य ये भी होता है कि दूसरे उनके आगे बौने नजर आए, हीन नजर आए। लेकिन भारत की परिकल्पना हमेशा ही ये रही है कि हम सबके सहारा बने, सबको साथ लेके चलें और सभी को जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। तो इस वर्ष की इस श्रृंखला में अलग अलग और भी ग्रुप्स को कुछ विशेष प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें U20 भी है। आप जानते होंगे अगर, तो अर्बन डेवलपमेंट का एक ग्रुप है, वो टोटल उस अर्बन डेवलपमेंट के साथ आने वाली परिस्थितियों पर बात कर रहा है। W20 है जो वुमेन्स के लिए बात कर रहा है।
C20 भी है जिसमें सिविल सर्विसेज से जुड़ी बातें, और हम जो आज इस बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं, ये Y20 विशेष पूरे ही विश्व के युवाओं को फोकस करता है। वैसे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, समृद्धि हो या सुख शांति हो, तरक्की हो, देश के युवाओं के ऊपर ही आधारित होती है। और Y20 का लक्ष्य इसलिए रखा गया है, हेल्थ, जो कि हम सब के जीवन की पहली प्राथमिकता है। पहला सुख निरोगी काया, ये भी अपने यहाँ कहा जाता है। हेल्थ इज वेल्थ भी कहा जाता है। तो यूथ को सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना या स्वास्थ्य की सच्ची परिभाषा और उसके महत्व को युवा उम्र में वो समझें और इस तरह का जीवन बनाएं कि जिससे उसका सर्वांगीण स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ये नहीं है कि वो फिजिकली फिट हो, या आम रूप से हम उसको स्वस्थ कह देते हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसके सारे पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं, जिसको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि WHO भी मानता है कि शारीरिक और मानसिक और साथ साथ सामाजिक तीनों प्रकार का स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। ये तो व्याख्या आप सभी ने पढ़ी है। जब एक व्यक्ति किसी एक अच्छे ओहदे पर बैठा है, लेकिन बिल्कुल ही जरूरतमंद व्यक्ति उसके सामने आता है और वो उसकी मदद करने के बजाय अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद रखता है, करप्शन करता है, तो क्या इस मानसिकता वाले को हेल्दी कहेंगे? एक व्यक्ति अन्य समाज में विचरित करने वाली बहन, बेटियां, सहकर्मी, किसी का भी फिजिकली, मेंटली हैरेसमेंट करके शोषण करता है, क्या आप उसको भी हेल्दी कहेंगे? ईर्ष्यावश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिराने में, नीचा दिखाने में हर संभव प्रयास करता है, क्या वो व्यक्ति का मन हेल्दी कहेंगे, स्वस्थ कहेंगे? अगर स्वस्थ शब्द को ही हम लेते हैं तो स्व में स्थित या हेल्दी, उसको भी अगर हमने डिवाइड किया हो तो हिल धाय, खुद को हील करना, अंदर से ठीक रखना, यही तो हेल्दी जीवन है। तो सही मायने में हेल्थ क्या है, स्वस्थ जीवन क्या है, इस पर युवाओं को युवा उम्र में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। जिस शरीर को हम देखते हैं वो हम सब जानते हैं कि नश्वर है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति जो मन बुद्धि की मालिक है, उस आत्मा का स्वास्थ्य क्या है, यह भी इसमें जोड़ा गया है। तो भारत सरकार के युवा मंत्रालय ने इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के साथ कोलैबोरेशन किया है कि इस बात को सबसे अच्छा युवाओं तक कौन पहुंचा सकता है। अपने यहाँ एक कहावत है ना, गुजराती में कहते कुआ में होय तो अवाड़ा में आवे। तो जहां तक हम स्वयं अपने तन और मन से
अपने व्यवहार, अपनी आत्म चेतना से स्वस्थ नहीं होंगे तो ये स्वास्थ्य की बात हम औरों से कैसे कर पाएंगे? वर्णन तो कोई भी कर देगा। तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी के नॉर्दर्न जोन का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के समीप ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जहां भारत के युवा और खेल मंत्री अनुराग जी ठाकुर का आना हुआ और उन्होंने उस कैंपस में जो समय बिताया, जो फील किया, तो उन्होंने ही स्वयं ऑफर किया कि Y20 के कार्यक्रम युवा मंत्रालय भारत सरकार आप लोगों के साथ करना चाहेगा। और तब ये MOU साइन हुआ और लगभग 200-250 प्रोग्राम की ये श्रृंखला है जो अभी शुरू हुई है। तो फर्स्ट उसमें हेल्थ है, फिर वेलबीइंग की बात है, कैसे जीवन में आंतरिक रूप से हम ये समझें एवरीथिंग इज ओके। प्राचीन समय में जब हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे तो कल्याणमस्तु कहते थे, सुखी रहो। ये जो सुख है, ये जो कल्याण है, ये क्या है? आज हम साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी को हम सोच लेते हैं कि सुख के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जीवन में वो स्टेबिलिटी मन की वो नहीं आ पाई है। तभी तो रोज नए साधन और निकलते जा रहे हैं। हर दिन नई टेक्नोलॉजी, हर दिन नए मशीन, नई चीजें बनती जा रही है और विश्व के मार्केट में भले आप हर दिन नया सामान खरीदते रहो तो दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, आंतरिक संतुष्टता कभी प्राप्त नहीं हो पाती। वो वेलबीइंग क्या है? एक तो मैं हूं और एक मेरा है। जो मैं और मेरे को समझ लेता है तो वो सही मायने में अपना कल्याण कर लेता है। जो मेरा है, जो मैंने इकट्ठा किया है, जो मैंने जोड़ा है, वो मेरा रोल है। और जो मैं हूं वो इन सब को निभाने वाली शक्ति हूं, इन सब को जोड़े रखने वाली, इन सब को भोगने वाली वो मैं हूं। और उस मैं को जगाना यही वेलबीइंग है। तो हेल्थ के साथ वेलबीइंग, इसका युवाओं को सही संदेश देना, ये भी Y20 का एक लक्ष्य है। देखिए, हम सब के अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं को उजागर करने के लिए हमें अपने आप से मिलना होता है, हमें अपने आप को भी जानना होता है। एक समय था जब मैं स्कूल में थी तो मुझे सबसे ज्यादा डर ये माइक पकड़ने का लगता था और हमें लगता था कि हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन कभी खड़े होके बोल नहीं पाएंगे। लेकिन वही है कि उसी क्षमता को जब हम अपने अंदर खोजते हैं तो वही क्षमता डेवलप कर पाते हैं। और ये कब होता है? जब अपने साथ हम कनेक्ट होते हैं, खुद के साथ कनेक्ट होना। आज हमारे मोबाइल में हजारों लोगों के कांटेक्ट नंबर है, कई ग्रुप्स बने हुए हैं। एक क्लिक करते ही 200-500 लोगों को मैसेज चला जाता है। बहुत सारे मैसेज हमें भी मिलते हैं और हम भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि मैं खुद को कितना अच्छी तरह से जानती हूं और खुद को मैंने पूछा तू ठीक है? Am I okay? मैं संतुष्ट हूं? तो मुझे अपनी मॉर्निंग को गुड करना है,
मुझे अपनी लाइफ को गुड करना है, गुड फीलिंग्स में रहना है, और उसके लिए ये बाह्य जगत से थोड़ा आंतरिक जगत में भी झांकना जरूरी है। इंटरनेट के ज़माने में आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ गई है, और वो हो गई है, जैसे नशा मुक्ति के अभियान चल रहे हैं, लोग व्यसनों के आदी हो गए, तनाव मुक्ति के अभियान चल रहे हैं, टेंशन में लोग जीने लगे हैं। ऐसे अभी मोबाइल मुक्ति के आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले। डिजिटल डिटॉक्स, ये भी इस Y20 का एक एजेंडा है। साउथ कोरिया का एक वीडियो मैंने देखा था, जहां पर ऑनलाइन गेम्स खेलने में, गेम्स भी है और कई प्रकार का जुआ है, कई चीज़ें हैं, सब जानते हैं भली भांति। इंटरनेट से तो हम न जाने कितनी चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ के युवा 15-15, 16-16 घंटे तक वो ऑनलाइन गेम्स में बिजी रहते हैं, और इसके लिए एक जबरदस्त बात उन्होंने कही कि बीच में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए वो डायपर पहन के बैठते हैं। वो 1 मिनट के लिए भी उससे दूर होना नहीं चाहते हैं। कहाँ है हमारी सही जिंदगी जीने की बात, और कौन सी एक अलग दुनिया में जीने लगे हैं। इन सब चीज़ों में हमारा जो ध्यान बंट गया है, चला गया है। और साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि जिस चीज़ पर आप लगातार अपनी दृष्टि, अपना मन एकाग्र करते हैं, लगाते हैं, इंटरेस्ट आता है आपको, धीरे धीरे आप उसी के जैसे बन जाते हैं। तो जो देखते हैं वही हर एक को करना भी है। सिर्फ देखना तो नहीं है ना, जो दिख रहा है वो सब कुछ प्रयोग में भी लाना है। इसलिए सही परिवार से दूर, सही आनंद से दूर आज का युवा कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो डिजिटल डिटॉक्स की बात इसमें कर रहे हैं। और तीसरा है स्पोर्ट्स। खेलों का युवा जीवन में बहुत महत्व है। प्राचीन समय से भी अपने यहाँ पर परंपरागत सभी प्रकार के खेल का महत्व रहा। गुरुकुलों में खेल का विशेष प्रतिदिन ध्यान दिया जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे खेल भी किसमें खेलने लगे? तो खेल मात्र इसलिए नहीं होता था कि आप कुछ नाम कमा लें, कुछ अवार्ड कमा लें। आजकल माँ बाप भी बच्चों को उस टाइप की टूर्नामेंट्स में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहते, जिसमें वो आगे चलकर कुछ अर्निंग करेगा, कमाई करेगा, नाम कमाएगा। लेकिन जो सही मायने में खेल की भावना थी, खेल हमें स्वस्थ करता है, खेल हमें कुदरत से नज़दीक लाता है, खुलेपन में लाता है, और खेल हमारे अंदर टीम स्पिरिट, फ्रेंडलीनेस क्रिएट करता है। जब एक कोई प्लेयर होता है, उसको बहुत सारे जगह जाना होता है, तो वो सभी लोगों से मिलता है और बहुत फ्रेंडली उसके साथ पेश आता है, क्योंकि खेल माना जीत और हार दोनों ही होता है। परंतु इसके बजाय आज हम कभी कभी सुनते हैं कि युवा खेलों के अंदर भी प्रतिबंधित दवाइयाँ लेना, कई प्रकार से चीटिंग करना, इन सारी चीज़ों को भी हम सुनते हैं। तो युवाओं को स्पोर्ट्स को भी जीवन में कैसे स्थान देना, उसके लिए समझाया जाना है। तो इस तरह के Y20 के कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप सभी से भी कहेंगे, आपको एक चिट मिली है। आपको अपने विचार आज के युवाओं के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी कोई आइडिया है, आपको वो शेयर करना है
और ये G20 की वेबसाइट पर फ्लैश भी होगा, और जो शिखर सम्मेलन होना है सितंबर में भारत में, उसमें इसके आधार पर युवाओं के लिए नई योजनाएं भी बनेगी। भारत के नीति आयोग को ये आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे ताकि वो आइडियाज़ के आधार पर भारत के गांवों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के युवाओं को जो भी कोई दिक्कतें हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खेलों में, हेल्थ में, तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है, तो वो जान करके आगे नीति निर्धारण किया जाएगा। तो आप सभी को भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। करेंगे ना सभी? अच्छा, आप में से कौन ये समझता है कि मैं भी कभी नेतृत्व कर सकता हूं, ऐसी मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? हाथ खड़ा करके बताइए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज, 1 मिनट। शाबाश, बहुत अच्छा। इनमें से मुझे लगता है कुछ तो ऑलरेडी अपने अपने ग्रुप का लीडरशिप कर ही रहे हैं। देखिए इतने सारे लोग हैं, है ना, लेकिन कुछ एक लोगों को तुरंत ये फ्लैश हुआ। इनके लिए ताली बजाइए। ये जो लीडरशिप है ना, ये इनिशिएटिव है। बैठ जाइए भले। अगर हम ये लीडरशिप अपने अंदर सोच लेते हैं, तब हमारे अंदर बहुत सारे गुणों की, वैल्यूज की अपने आप एक श्रृंखला शुरू होती है। हर बड़ी से बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और उस कदम को हिम्मत कहते हैं, साहस कहते हैं। और वो साहस अपने अंदर जगाना, ये इस Y20 का लक्ष्य है। युवाओं के कंधे पर ही हर देश का इतिहास और हर देश का भविष्य चलता है। तो हम अपने देश के, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, अगर बिलो 35 की बात करें तो हमारे देश में 48 करोड़ से ज़्यादा युवा बिलो 35 एज के हैं, और Y20 के लिए बिलो 29 माना बिलो 30 एज फिक्स की गई है। तो उसकी भी संख्या हमारे देश में 35 करोड़ है। अगर Y20 समूह में से चाइना को अलग कर दिया जाए तो बाकी के जितने 44 कंट्रीज है, उनकी टोटल पॉपुलेशन के बराबर तो हमारे यहाँ के युवा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो युवाओं के देश में अगर युवा शक्ति को समय रहते संवारा नहीं जाएगा, तो फिर हम जो चाहते हैं कि देश दुनिया को गाइड करे, विश्व गुरु बने, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम अपनी शक्ति को ही खो देंगे। तो हमारी तरुणाई एक बहुत बड़ी हमारी संपत्ति है, और इस संपत्ति को इस साल बहुत बड़ा ये सुनहरा अवसर मिला है कि वो अपनी बात को विश्व मंच पर कर सकता है। तो आप में से सभी का हम आह्वान करते हैं कि Y20 के माध्यम से आप अपनी बात, अपने विचार साझा करें, और गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाने का ये प्लेटफॉर्म आपको हम प्रदान करते हैं। बहुत सी बातें और भी यहाँ से होनी है, पर सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर यहाँ पर बैठा है वो उमंग उत्साह का धनी है, तो वो युवा है। और युवा उम्र में होते भी अगर वो उमंग उत्साह नहीं, वो हिम्मत नहीं, तो शायद वो युवा उम्र में होते हुए भी वृद्ध है। तो हम सब क्या कहलाना पसंद करेंगे? क्या कहलाना पसंद करेंगे? कभी एक दिन भी आपका चेहरा देखकर कोई कह दे कि क्या बीमार से लग रहे हो, थकान लग रही है, तो भी रूम में जाकर सोचेंगे थोड़ा मेकअप कर लें, ठीक नहीं लग रहा है ना। तो जीवन में सदा युवा बने रहे, उसके लिए मेंटल इलनेस को ख़त्म करना है। और लास्ट में एक ही बात कहूँगी, इलनेस टू वेलनेस का सफ़र सिर्फ एक ही शब्द को बदलने से होता है, और वो है आई को वी में बदल दो। आई
मैंपन, जिसने आज हर एक व्यक्ति को दूसरे से दूर किया हुआ है, इस ईगो को, इस मैंपन को समाप्त कर वसुधैव कुटुंबकम, हम सब साथ है, हम सब मिलके हम सब के कल्याण की बात करें, तब वेलनेस हो जाएगी। वरना तो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे कि इनके पास ये जितनी देर यहाँ बैठे ना, उतनी देर में कितने मिस कॉल आ गए होंगे, कितना ज़्यादा आज हम डॉक्टर्स के पास समय बिता रहे हैं। तो हम सभी एक आदर्श समाज की ओर चलने वाले युवा बने और देश को भी ले चले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય ગીતાબેન. બહુ સુંદર અને સરળ શબ્દોની અંદર Y20નો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ કર્યો. જ્યારે જ્યારે વિશ્વમાં એક નવી ક્રાંતિ, એક નવી દિશા કે કંઈક નવું પરિવર્તન થયું હોય તો તે સમયે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે નારાઓએ ખૂબ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઉમંગ, ઉત્સાહ, જોશ અને હિંમતનો પર્યાય એટલે જ યુવા. યુવાઓમાં એ ઉમંગ ઉત્સાહના પ્રવાહને પ્રવાહિત કરવા માટે નારા બોલાવશે બ્રહ્માકુમારી અનિશાબેન, બ્રહ્માકુમારી શ્વેતાબેન. આ નારા બ્રહ્માકુમારી સોનલબેન, બ્રહ્માકુમારી પરિતાબેન સર્વ ખૂબ જ ઉમંગ ઉત્સાહથી નારા બોલશે અને આપણી અંદર પણ એક નવી ચેતનાને જાગૃત કરવા માટે નારા બોલાવશે. આપણે સૌ પણ એમાં સહભાગી બનીશું. ઓમ શાંતિ. નારા જ્યારે આપણે બોલીશું ત્યારે આપણે બધા એક સાથે ઉમંગથી બોલીશું. સૌથી પહેલાં અમે એકવાર બોલીએ ત્યારે આપ સૌ સાંભળશો અને ત્યાર પછી આપણે બધા જ એક સાથે ફરીથી રિપીટ કરીશું. युवा शक्ति का यही है नारा, स्वर्ग बने संसार हमारा। युवा शक्ति का यही है नारा, स्वर्ग बने संसार हमारा। युवा में है शक्ति अपार, यही करेंगे जग उद्धार। युवा में है शक्ति अपार, यही करेंगे जग उद्धार। देश का गौरव युवा हमारा, व्यसन मुक्ति का देता नारा। देश का गौरव युवा हमारा, व्यसन मुक्ति का देता नारा। युवा फैलाए ज्ञान प्रकाश, गूंजे धरती और आकाश। युवा फैलाए ज्ञान प्रकाश, गूंजे धरती और आकाश। तोड़ फोड़ को छोड़ दे युवा, टूटे दिलों को जोड़ दे युवा। तोड़ फोड़ को जोड़ दे युवा, टूटे दिलों को जोड़ दे युवा। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। साथी हाथ बढ़ाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। साथी हाथ बढ़ाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। युवा जागे, जग जागे, युवा जागे, जग जागे। युवा तू बन सर्व महान,